सेंटर ऑफ मास को हमने डिफाइन कैसे किया था? सेंटर ऑफ मास इज a point where the whole mass of the system or body is supposed to be concentrated, and it moves in the same way as the body would have moved on the application of force or the system would have moved. Normally हम लेते हैं कि if you have n particle system तो उनके position vector पता है. You can say that center of mass of, अगर टू पार्टिकल सिस्टम लिखेंगे if you have 2 points and position vector are given, M1 having position vector R1 and M2 having position vector R2. The position vector of center of masses. We say RCM is and if M1 is equals to M2, then position vector is R1 plus R2 by 2. Normally we say that position vector lies on the line joining the two masses. In coordinate form, you can say that RCM is then M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2. So coordinate के basically concept with you can find the center of mass. And we can extend the same argument to n particle systems. If M1 R1 M2 R2 की जगह it would be M3 R3 M4 R4 and up to Mn Rn. And similarly यहाँ पे भी हम n particle system कर सकते हैं and we can write in terms of summation. So you can say for n particle system, we can say that RCM is summation MIRI upon summation MI and summation MIXI upon, you can write this as total mass also. And from this we can say, if we know the position vector of center of mass, the rate at which position vector changes with respect to time
That will give us the velocity of center of mass. तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो विल गेट द एक्सेलरेशन. So इसी फॉर्मूला को अगर हम एक्सटेंड कर दें, से इफ यू हैव टू राइट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, you can say rate of change of position vector with respect to time. You can say that VCM is you can write VCM as M1V1 plus M2V2 upon total mass. Or you can say this will be called the momentum of center of mass. Momentum of system or center of mass. Now, if no external force X, we say momentum of system is constant, or you can say that momentum of center of mass remains constant, Newton's second law. So according to Newton's second law, if no external force X, momentum of center of mass remains constant. And अगर हम इसको differentiate कर देंगे तो that will give you the acceleration. So acceleration of center of masses rate of change of velocity of center of mass with respect to time. You can say it's M1A1 there's you have the point bodies. कि अगर point bodies हैं तो you can write in this form. But if you have continuous bodies, ring है, disc है, sphere, hemisphere, semicircular ring, then you have to use the different formula. अगर हमारे पास कंटिन्यूस बॉडीज हैं तो जो आपको मूवमेंट सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं, पहले तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज mathematically we can say that or in DM, if you remember, we can solve using three different methods.
For one-dimensional body, dm was given as lambda dx. For two-dimensional body, small masses, sigma dA, and for three-dimensional body, dm is rho dV. Lambda is mass per unit length. Sigma is mass per unit area. It can be uniform or non-uniform. Normally मेडिकल में तो सिर्फ यूनिफॉर्म के ही आएंगे, मेंस में भी यूनिफॉर्म के आएंगे. IIT में they can give lambda, sigma and rho as variable also. Mass per unit volume. जो कॉमन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकाले थे, say for semicircular ring, the semicircular disc, its mass is present everywhere in this case, this field. The center of mass lies यहाँ पे कहीं पे. For hemisphere, and for hemispherical shell. शेप तो सबकी ऐसी बननी है. इस केस में center of mass is at a distance of semicircular ring. कहाँ पे? 2r by pi. 2r by pi. For disk, 4r by 3 pi. 4r by 3 pi. For hemisphere, हेमिस्फीयर के लिए इस बार जे एडवांस में जब लास्ट ईयर था क्वेश्चन आया था जिसमें वाईसीएम यूज होना था बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होना था हेमिस्फीयर के लिए. उन्होंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस दी थी एंड हेमिस्फेरिकल शेल हाँ बैठू. Triangular sheet, triangular sheet. So 3h by 4, if h is the height, 3h by 4 from the top.
सो ये बेसिकली याद रखना है, इसके अलावा तो आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, बट नॉर्मली पहले 3 से ही काम चल जाता है हमारा. Semicircular ring, disc and hemisphere, shell or triangular sheet are rarely used. अब इसमें एक तो न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें कंसेप्ट यूज होगा कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स द मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट. तो मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट. दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस टॉपिक का, कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यू कैन से. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. एक बार ये पीछे कर दो. ये नोट करना है. यस. थैंक यू सर. If no external force acts, then momentum in center of mass is constant, or you can say that as m is generally constant. इसका जो हम यूज करते हैं, दैट इज if VCM is zero initially, different parts of system, parts means different masses, moves in such a way that VCM remains zero. Or you can say for two particle system, हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज, और न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा सबसे ज्यादा. If center of mass is initially at rest, it will remain at rest. In absence of external force. So m1 dx1 is equal to m2 dx2. Planck problems जितनी थी, inclined plane से body slide करके नीचे आ रही है, everything uses this concept only. तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जो नॉर्मल टाइप्स आ सकती हैं आपको एग्जाम्स में.
So we are given that two particles of mass 4 kg and 2 kg are located as shown in figure. Find out the position of center of mass. अब दो मेथड है, हमें पार्टिकल्स दिए हैं 4 kg इधर 2 kg इधर, या तो हम इसको एक्स एक्सिस मान लें और सेंटर ऑफ मास निकाल लें, और यू कैन से बिकॉज हमें ओरिजिन दिया है कि ओरिजिन 4 kg के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर 4 kg के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 kg. X coordinate will be, X coordinate is 5 cos 37, 5 cos 37, and Y coordinate is Y coordinate 4. 5 sin 37, because angle 37 given है, तो X और Y coordinates क्या हो जाएंगे इसके? 2 kg के coordinates 5 cos 37 is 4 by 5. So 5 cos 37 is 4 Yeah. and 5 sin 37 is 3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को पता चल गया, दिस इज 4 and 3. इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है. सो यू कैन सिंपली, एक मेथड तो आप ऐसे कर सकते थे, you can say that x coordinate of center of mass is 4 into 0 plus 2 into 4 upon total mass 6. Y coordinate is 4 into 0 2 into 3 upon 6. So आपने x and y coordinate निकाले. Second is कि अगर हम इसको x एक्सिस मान लें, इसके कोऑर्डिनेट्स 5 0, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 4 into 0 upon 6, and y coordinate is 4 into 0 plus 5 and 2 into 0 upon 6. तो ये तो 0 आ गया. दिस इज 10 by 6 और 5 by 3. इससे कंक्लूड क्या कर सकते हो? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, दिस इज x coordinate is 8 by 6 4 by 3 and this is 6 by 6 1. कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? The center of mass always lies along the line joining two particles. मतलब इसका मतलब यह है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन नहीं करते कि आपने एक्स एक्सिस किसको लेना है, वाई एक्सिस किसको लेना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आ सकते हैं डिपेंडिंग आप किसको एक्स एक्सिस मान रहे हो. बिकॉज मेरी मर्जी है ना, मैं इसको एक्स एक्सिस मान, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो कोऑर्डिनेट्स हम किसे एक्स एक्सिस मान रहे हैं, हम क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, पर सेंटर ऑफ मास उस पर डिपेंड नहीं करता. इस केस में भी देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास अगर मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, तो दूसरे केस में भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो वही रहेगी, पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने से उसके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे. सो सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन changes with change in coordinate system, the position of center of mass remains unchanged. इसको आप मैथमेटिकली अगर एक बार वेरीफाई करके देखें, XCM is 4/3, मतलब मैंने अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया
So x coordinate is 4/3 and somewhere over here. एंड इसमें हमारा y कोऑर्डिनेट आ रहा है 1. वैल्यू सेम आ रही है, चेक करना गलत तो नहीं की कोई कैलकुलेशन. ये डिस्टेंस कितना हो गया? This will be 16/9 plus 1. 16/9 सेम 5/3 आ रहा है. ठीक है, इसमें डायरेक्ट 5/3 डिस्टेंस आ रहा है. सेंटर ऑफ मास लाइज हियर. तो सेंटर ऑफ मास लाई तो उसी पॉइंट पे कर रहा है, पर कोऑर्डिनेट चेंज हो गए बाय चेंजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर है सबको ये? Then you have next. Two particles of mass 1 kg and 2 kg lie on the same line. If 2 kg is displaced 10 meter towards 10 meter rightwards, then by what distance 1 kg should displace so that center of mass displaces 2 meter rightwards? हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन है. You have two particles of mass 1 kg and 2 kg. And इनका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा बिटवीन द टू. हमें दे 2 kgs displaced 10 meter rightwards. इसको इधर डिस्प्लेस किया 10 मीटर. बाय व्हाट डिस्टेंस शुड, इसका नहीं पता हमें डिस्प्लेसमेंट. ये हमें डेल्टा x2 गिवन है. सेंटर ऑफ मास जो कहीं भी लाई कर रहा था, इट डिस्प्लेसेस 2 मीटर राइट. तो हमने बताना है व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg. सिंपल प्रोसेस है. हमने मासेस को मूव करना शुरू किया, सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट भी दे दी है. हमारे पास जो रिलेशन है, जो हमारे पास वेक्टर रिलेशन है, दैट इज MVCMS. टू पार्टिकल सिस्टम के लिए M1V1 प्लस M2V2. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बिकॉज 1D की बात हो रही है. M is total mass is equals to M1 dx1 by dt plus M2 dx2 by dt. Or you can say अब वेक्टर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. टोटल मास इज 3 kg. सॉरी, total mass is 3 kg. Center of mass displaces 2 meter rightward, so we read it as 2i. 1 kg की डिस्प्लेसमेंट नहीं पता. 2 kg is 10 meter rightwards, so you get dx1 so first mass should displace minus 14i for center of mass to remains to move 2 meter rightwards. देखो इसमें कोई डाउट है तो इसमें देख लो, if you have any doubt. क्लियर है सबको ये?
कि इसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है, हमें सेंटर ऑफ मास का भी दिया है कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसेस 2 मीटर राइटवर्ड्स, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट भी लेनी है साथ में आपको. नेक्स्ट इज दिस सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट डू इट, इसको सॉल्व करो. इसमें हमें दिया 2 particles 2 kg and 4 kg lie on the same line. If 4 kg is displaced rightwards by 5 meter, then what distance 2 kg should move to center of mass to remain at rest? मतलब DC XCM should be 0. हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 4 kg की एंड सेकेंड की बतानी है, बट सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव. तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट दी थी, उसकी जगह 0 पुट करना. सॉल्व करो, क्या आता है आंसर. You say that the center of mass is not moving. -10 आएगा. Implies m1 dx1 2 kg 4 kg 4 kg is displaced 5 meter rightwards. ये निकालनी है. So you can say 2 delta x1 so 10 meter in opposite direction. क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली. बट ये फॉर्मूला याद रखना. इनफैक्ट इसकी जगह जो पिछले पे किया था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये प्लैंक प्रॉब्लम्स में भी यही लगा करेगा. m dxcm is equals to m1 dx1 plus m2 dx2. Two circular disks having radius r and mass density sigma and 2 sigma. Radius same है, mass density different है. We can say जो फर्स्ट का मास होगा जो सेकेंड का मास होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू 2 सिग्मा. मतलब दिस इज 2m1. हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. एक बार ये आपने मासेस कैलकुलेट कर लिए, यू जस्ट अज्यूम दैट एज 2 पॉइंट मासेस. इसको अगर मैं ओरिजिन मानूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 0. सो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कहाँ लाई करेंगे. So m into 0 so it's 4r by 3.
That means center of mass always lies closer to the heavier mass or smaller mass. Smaller mass के पास लाई कर रहे हैं heavier Heavier mass mass. के पास. Heavier mass. इसका यूज कहाँ किया था सबसे appropriately फिजिक्स में? अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे देता, इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करता? m and 40,000 m. इसको अगर मैं ओरिजिन मानूं, 40,000 है. इसके कोऑर्डिनेट्स are 0, तो सेंटर ऑफ मास किधर लाई करता? Approximately r,0 पे ही कटेगा. 40,001. मीन से कौन सा पॉइंट हुआ? किसके पास लाई कर रहा है ये पॉइंट? m के या 40,000 m के? 40,000 है. जस्ट यहाँ पे, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है. ये भी मैंने थोड़ा ज्यादा शो कर दिया. 40,000 के बहुत पास. इसका कहीं यूज किया था फिजिक्स में? सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर हेवियर मास. मैंने ऐसे 40,000 ही क्यों लिया? मतलब अप्रोक्सीमेट जैसे कुछ वैल्यू ली मैंने, तो मैं इतना हैवी मास क्यों लेके चल रहा हूँ? ऐसा कुछ फिजिक्स में पढ़ा हो? अगर मैं आपसे बोलूं से इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है? कोई एक एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी कैल्शियम. कैल्शियम में न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है? रफली, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए. रफली कितने टाइम्स ज्यादा? गेस तो कर सकते हो. अगर मैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ, तो मैं न्यूक्लियस का मास सबसे आसान का बता दो, चलो हाइड्रोजन का बता दो. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी है? अरे ये तो पड़ा है 1837 टाइम्स. एक प्रोटॉन ही तो है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास क्यों मूव कर रहा है? किस फोर्स के कारण? अगर मैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेता हूं, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू विच फोर्स? आपको ये नहीं पता? क्या आप बताना नहीं चाहते? अपनी नॉलेज अपने तक की रखनी है. इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है, तो कौन सी फोर्स के कारण कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की?
If electron moves around the nucleus, the centripetal force is provided by. If Earth moves around Sun, centripetal force is provided by. Gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव करेगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Electrostatic. न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. सन और अर्थ में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है. ऐसे इजी क्वेश्चंस में चुप बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा. सो मैंने कहा से मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम का केस लेता हूं. मैंने यहां लिया न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन. अपने का इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दिस electrostatic force. This force is exerted on electron by ये फोर्स किसने एग्जर्ट की थी. न्यूक्लियस ने. तो इस पे भी एक फोर्स लगेगी. सेम न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो इससे क्या कंक्लूड करें. मैं इससे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास नहीं मूव करता. इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा. न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज. न्यूक्लियस के बहुत पास, यहां पे कहीं पे. बिकॉज न्यूक्लियस बहुत हैवी है. न्यूक्लियस बहुत हैवी है. न्यूक्लियस इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा. तो न्यूक्लियस जो है ये इधर मूव करेगा. और इलेक्ट्रॉन ऐसे बड़े सर्कल में. We say it's not electron moving around the nucleus, it's both electron and nucleus moving about the common center of mass. क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ही लाई करता है तो हम ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा. पर एक्चुअल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव कर रहे हैं अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास. इट्स नॉट कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. सिमिलरली हम लिख देते हैं दैट अर्थ मूव्स अराउंड सन. But it's not Earth moving around Sun, it's Earth and Sun moving about the common center of mass. Earth और Sun में भी Sun का मास बहुत ज्यादा है. Sun का मास बहुत ज्यादा है तो Sun एक पॉइंट उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो Sun के बिल्कुल पास लाई करेगा. तो Sun को हम मान लेते हैं कि वो मूव ही नहीं करता. सिमिलरली सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ. अर्थ का मास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या मून भी है तो उससे बहुत ज्यादा है. So again, they are moving about the common center of mass. It's not that one body is moving around the other. So you can say like in planetary motion, Sun and Earth move about the common center of mass. Similarly,
बिकॉज इस पे फोर्स लग रही है तो इस पे भी लग रही थी, न्यूक्लियस पे भी, इसको भी सर्कल में मूव करना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब दोनों क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सोच के बताना मेरे को। दोनों क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या लगता है आपको? सर दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। दोनों सर सेम ही उसमें मूव करेंगे या सब दोनों ही क्लॉकवाइज या दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट? सर ओमेगा सेम होगा। हम्म, सर सेम होगा ओमेगा तो। सेम होगी बिकॉज सर वो सेंटर ऑफ मास के मतलब वो एक ही तरीके से the मूव कर center रहे of हैं mass जैसे should always lie on the line joining the two. So तभी होगा if angular velocity same। इस क्वेश्चन को करो, find the position of center of mass as shown in figure। डेंसिटी सिग्मा ले सकते हो कि इसकी सिस्टम की डेंसिटी सिग्मा है। तो सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पे होगा? किसी भी पॉइंट को रीजन मान के बता दो मेरे को, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन आप रीजन किसको लेते हो। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इफ आई कंसिडर रीजन, पहले अगर हम मासेस निकाल लें, इसका एरिया स्क्वायर का एरिया इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आर एंड 0। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने एक्सियम, सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको थोड़ा सा, सही आंसर आएगा। क्या आपको दोनों पार्ट्स का मास निकालना पड़ेगा? दोनों पार्ट्स के सेंटर ऑफ मास पता है हमें? कहाँ सॉरी डिस्क था, रिंग था? डिस्क थी ये। डिस्क थी तो दिस शुड बी, 4r/3 का। इसको ऐसे करो, डिस्क ही लेना पड़ेगा। फोर आर बाई 3 पाई एंड यहाँ पे भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कि डिस्क के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता है, रेक्टेंगुलर प्लेट के पता है, और इनफैक्ट स्क्वायर प्लेट दिया हमारे को, तो यू कैन फाइंड मासेस निकाल लो इंडिविजुअल बॉडीज के, देन सॉल्व इट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कट आउट पोर्शन, कि पूरी बॉडी में से एक पार्ट रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी में से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, अगर मैं रिमेनिंग बॉडी और रिमूव पार्ट का सेंटर ऑफ मास पूछूं तो इट वुड बी एट सेंटर। अगर मैं इसको रिमूव ना करता तो सेंटर यहाँ पे लाई करता, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। जो पार्ट रिमूव किया इसका मास m1,
जो बच गया इसका मास m2। तो m1 और m2 का मिला के सेंटर ऑफ मास हमें पता है कहाँ लाई कर रहा है। जो रिमूव किया पार्ट, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था? इसका रेडियस a है, a/2 समझ लो। a/2 कॉमा 0। और कंबाइंड लाई कर रहा है रीजन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y तो 0 ही आएगा। So you can say that combined center of mass removed part plus remaining body is at geometric center. अगर मास की बात करें, पूरे का मास अगर m है, रिमूव पार्ट का मास m/4। m/4 If total mass is m, m1 is m/4 and remaining is m2 is m minus m1 और 3m/4। फॉर्मूला यूज कर लें हम, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास रीजन पे m/4 into a/2 so you can say x2 comes out to be minus a/6 and y coordinate will be 0। समझ में आया कैसे ये है कि हमेशा रिमूव्ड पार्ट और रिमेनिंग पार्ट का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास रीजन पे है। रिमूव्ड पार्ट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता है तो रिमेनिंग के यू कैन फाइंड by taking that combined center of masses at a region. Next. Two particles of mass 1 kg and 2 kg respectively are projected in a direction as shown in figure with speed UA is equal to 200 and UB is 50 meter per second. Initially, they are 90 meter apart. Find the maximum height retained by the center of mass. Assume acceleration due to gravity to be constant and equal to g, as shown in figure. So, हमें vertical motion the other two bodies are moving in vertical motion, and one body is moving upwards और एक downwards। ऐसे ले लो डायग्राम, हमारे को ऐसे गिवन है। इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 90 meters और a दिया है, a is moving upwards with b is moving downwards with 50 meter per second. Mass of b is 2 kg.
हमें सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट बतानी है, कितनी होगी. फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास. दोनों बॉडीज पे एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट है? The same acceleration. दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन सेम है. दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन सेम है तो सेंटर ऑफ मास की सेम सर आएगी, उसकी जीरो आएगी या डिफरेंट आएगी? अगर मासेस सेम हो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज a1 plus a2 by 2 if m1 and m2 are same. बट यहाँ पे हमें मासेस डिफरेंट दिए हैं तो एक्सेलरेशन सेम आएगी डिफरेंट आएगी सेंटर ऑफ मास की? सेम ही आएगी. सेम आएगी. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम. दोनों बॉडीज की वेलोसिटी दी है, 1 kg की 200, 2 kg की 50 और डाउनवर्ड 1 kg की अपवर्ड्स. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल आएगी. Yes, अब sir. वो देख सकते हो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आई या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेक्टर्स यूज करना. वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, सेंटर ऑफ मास जहां पे मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे जाके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिड्यूसेस टू जीरो. तो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगाओ एंड सॉल्व कर दो. सो यू कैन राइट, ऊपर लिख सकते हो दैट as both the bodies have same acceleration g downwards, as both the bodies have same acceleration g downwards, acceleration of center of mass is also same. वो हमें 10 लेने के लिए कहा है क्वेश्चन. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो सेम. Initial velocity of center of masses. Initial velocity of center of masses. Initial है तो if I write it as UCM. So we say 1 into 200 J. So 100 J by 3. At maximum height, velocity of center of mass is 0. U square minus U square by 2A. So 1000 by 500 by 9. यहाँ तक क्लियर? This is 500 by 9. This is displacement of center of mass. तो अगर मेरे को बताना है मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी हैव टू फाइंड इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
Initial position of center of mass is 1 into 0. और ये वैल्यू आती है रफली 55. इतनी आ रही है। हमारे को ऐसे दिया. अब पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, और ये अपवर्ड डिस्प्लेस, सॉरी पहले 60 पे था और ये अपवर्ड डिस्प्लेस हुआ 55.5 मीटर. तो ग्राउंड से हाइट होगी 115.5 मीटर कि 55 मीटर और ऊपर चला गया यहाँ तक. So maximum height of center of mass is 115.5 मीटर. क्लियर है सबको कि इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो हमने मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं हम. ये करो. A wooden plank of mass 20 kg is resting on a smooth horizontal floor. A man of mass 60 kg starts moving from one end of the plank to the other. Length of the plank is 10 meter. Find displacement of plank over the floor when the man reaches the other end. Wooden plank of mass 20 kg is resting on smooth horizontal floor. That means there is no frictional force exerted by the ground. Because no frictional force and horizontal displace कर रहा है man, horizontal direction में कोई force नहीं लग रही external, तो horizontal momentum should remain constant. So you can write the concept first as ground is frictionless. As ground is frictionless, it implies that as ground is frictionless, it implies that no external force acts on the system in horizontal direction. No external force acts in horizontal direction. Therefore, horizontal momentum of the system should be constant or zero throughout. Therefore, m1 dx1 plus m2 dx2 should be 0. So, निकालो आंसर क्या आता है. m1 dx1 plus m2 dx2 should be 0. सर -7.5 मीटर. कितना माइनस -7.5 मीटर. -7.5 मीटर 20 into 2.5 60. ठीक है.
सर अगर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन दिया होगा तो हम कैसे करेंगे? फ्रिक्शन दिया होगा तो फिर आपको, अगर कांस्टेंट है तो आपको उसकी इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी। पर ऐसे क्वेश्चन क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड होते हैं तो फ्रिक्शन नहीं दी होती, नहीं तो फिर वो लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के, कि अगर मैन की एक्सेलरेशन ए है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो प्लैंक की एक्सेलरेशन कितनी होगी। बाकी लोग भी देखो आंसर ज्यादा है या नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, मेरा ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हमें दिया है कि बिकॉज मैन प्लैंक के ऊपर मूव करेगा, अगर मैन ने टुवर्ड्स राइट जाना है तो प्लैंक टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ग्राउंड से फ्रिक्शन नहीं है। तो ग्राउंड से फ्रिक्शन नहीं है इसलिए हम सिंपल कंसेप्ट लगा देंगे कि m1 dx1 प्लस m2 dx2 शुड बी जीरो, बिकॉज इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो फाइनल भी रेस्ट पे। ओके सर। देखो सबका आया कि नहीं आया। तो हम दो डायग्राम बना लेंगे, एक तो ये बना ही हुआ है, एक इसके नीचे और बना लेते हैं। जिससे मैन आगे जाएगा तो प्लैंक पीछे आएगा। प्लैंक एक्स डिस्टेंस पीछे आ गया तो मैन की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 10 माइनस एक्स, कि मैन तो यहीं तक मूव किया, वी कैन से मास ऑफ मैन प्लस mass of plank into displacement, this should be zero.
ये x सेम है, सो x2 की जगह 20x. So 7.5 meter x की वैल्यू. So Planck moves backward by 7.5 meter. यहाँ आप टोटल वेक्टर्स का यूज कर सकते हो. अगर मैं टोटल वेक्टर्स का यूज करूं तो मैन की डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे? दिस इज 60 इंटू, इससे आ जाएगा सेम आंसर अगर मैं वेक्टर्स यूज करूं. आंसर आएगा या नहीं आएगा? ऐसे लिख के आएगा आंसर, ये बता दो. बिकॉज आपने ऑलरेडी यहाँ पे -x ले लिया, तो आपका ऐसे आंसर नहीं आएगा. अगर आपको वेक्टर फॉर्म में यूज करना है ना, तो आप पहले से एज्यूम नहीं करोगे कि ये पीछे जा रहा है. हम सिंपल ऐसे लिखेंगे 60x1 plus 20x2 is equals to 0. Means x2 is -3x1, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? x2 plus x1 और 4x1, and this is given as 10. तो मैन की 2.5 और प्लैंक की 7.5, बिकॉज प्लैंक इज 3 टाइम्स मोर. आप पहले से assume नहीं करोगे अगर वेक्टर साइन यूज करना है कि x इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सब सिंपल लिखोगे, यहां से आ रहा है हमारे पास x2 इज -3x1, मींस दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और एक इधर जा रहा है, मतलब x1 इधर गया, दूसरा 3x1 इधर गया, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज 4x1. तो 4x1 इज इक्वल टू 10. दोनों ने मिला के 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. Particle of mass m is placed on a top of a smooth wedge of mass capital M, which in turn is placed at rest on a smooth horizontal surface. Friction नहीं दी कहीं पे भी, ना तो wedge और block के बीच में है, ना wedge और ground के बीच में. The distance moved by the wedge as the particle reaches the bottom. करो solve इसको. So because इसमें भी यही है, ब्लॉक नीचे आएगा तो वेज पीछे की तरफ जाएगा. इस केस में अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, will the center of mass remains at rest? Because initially रेस्ट पे है, तो फाइनली रेस्ट पे होगा या नहीं होगा? सर x मतलब सर हॉरिजॉन्टली रहेगा, वर्टिकली नहीं रहेगा. हॉरिजॉन्टली रहेगा, वर्टिकली नहीं रहेगा, बिकॉज वर्टिकली ग्रेविटी एक्ट कर रही है. सो यू कैन राइट, इसमें भी कंसेप्ट लिख लो पहले. एज
The only external force is the only external force responsible for motion of is only external force which acts is only external force due to which block moves is gravitational force which acts in vertical direction. Which acts in vertical direction. Therefore, center of mass. Therefore, center of mass will. Therefore, center of mass will not displace in horizontal direction. So इसमें भी सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दो m into x plus capital M into x dash, that should be 0 vector form use करना है तो. So आंसर बताओ क्या आया. माइनस स्मॉल m लैम्डा बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m. देखो बाकी लोग भी. एग्जाम्स चल रहे हैं क्या स्कूल में? बहुत कम लोग आते हैं, ज्यादा लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं. किस किस के स्कूल में चल रहे हैं एग्जाम्स? ये सारे स्कूल्स में ही चल रहे हैं अभी. एपीजे का भी कोई एपीजे में चल रहे हैं एग्जाम? आशिता आपको पता होगा. एपीजे में भी चल रहे हैं, स्वामी संदास में भी शायद चल रहे हैं, सारे स्कूल्स में ही होंगे फिर तो. एमजीएन में भी हैं शायद. आदर्श नगर में नहीं हो रही है. कितने 3 4 5 लोग आए हैं. ऑफलाइन में भी 1 2 ही आते हैं, सब रिकॉर्डिंग के भरोसे चल रहे हैं. सर आंसर क्या है? आपका क्या आया? m lambda upon m minus n. ठीक है. m माइनस m. यस सर. प्लस आया था मेरा. सो हमने सेम कंसेप्ट लगाना है. हमने लेना है कि डिस्प्लेस करके जो प्रिज्म है या वेज है, वेज थोड़ा सा आगे मूव कर गया. डिस्प्लेस करके वेज आगे मूव कर गया तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस.
सॉरी, ये आगे गया, ये पीछे गया। तो ब्लॉक जो है यहाँ पहुंच गया। अगर हम स्केलर फॉर्म यूज करें, ये मास स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, m into lambda minus x, so m lambda minus mx minus capital Mx, this should be 0. So m lambda upon m plus m. या टोटल वेक्टर फॉर्म यूज करूंगा तो आई विल राइट इट एज and you know the relation. The relative displacement is x1 is in x2 is. So one is capital M lambda upon m plus small m, other is small m lambda upon m plus m. देखो क्लियर है सबको? सो साइन ध्यान से अप्लाई कर दें, नहीं तो आंसर गलत आएंगे. Next is a jeep of mass 2400 kg is moving along a straight stretch of road at 80 km per hour. It is followed by a car of mass 1600 kg at 60 km per hour. How fast is the center of mass moving? First part तो easily कर दोगे. Second part करो. Find velocities of both in centroidal frame, मतलब in center of mass frame. पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो ना, क्या आएगी. m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 किलोमीटर पर आवर में ही रहने देना. कैलकुलेशन को आसान रखना है तो एक का मास m, एक का 2/3m ले लो, बिकॉज 2400 kg and 1600 is m and 2/3m. So m into 80 plus 2/3m into 60 upon m plus 2/3m, so 5/3m. First find the velocity of center of mass and then in centroidal frame. तो अगर हम velocity of center of mass निकालें सबसे पहले, मैं 2400 kg को अगर m लेता हूं तो 1600 kg is 2/3m. Followed by another का, तो उसका मास 1600 है. एक का m, एक का 2/3m.
m plus 2/3m is 20, 80m तो हमारे पास ये आ गया। जो सेंटर ऑफ मास है तो velocity in centroidal frame means velocity relative to center of mass. Velocity of B is so centroidal frame में ये इधर मूव कर रहा है, ये आगे मूव कर रहा है विद 8 किलोमीटर पर आवर। देखो क्लियर है सबको कैसे किया? सेंट्रोइडल फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी। इसका यूज कहाँ आता था याद है? सेंट्रोइडल फ्रेम का कौन से न्यूमेरिकल्स में कि सेंट्रोइडल फ्रेम में वेलोसिटीज निकालो? सर स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम है जिसमें सर दो स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम है जहां पे हमने निकालना होता था कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता था जब दोनों की वेलोसिटी वही हो जाए जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, या रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास दोनों ब्लॉक्स वेस्ट पे आ जाए। So next you have the friction coefficient between the horizontal surface and blocks are 1/15 and 2/15. वो 2 थोड़ा सा घटा हुआ है, 1/15 and 2/15 respectively. Collision between them is perfectly elastic. Find separation between them when they comes to rest. दोनों का मास सेम है। पीछे वाला ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, व्हेन इट रीचेस बी तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इट कोलाइड्स विद इट। कोलाइड करेगा तो इससे फर्क पड़ेगा फ्रिक्शन है या नहीं है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो ही जाएगी, सेम मास है तो। Because elastic collision in 1D में था कि if two bodies collides and the masses are same, they interchange their velocities. डिफरेंट होगी इससे, मतलब डिफरेंट होगी, मतलब ऐसे नहीं होगा जैसे प्लास्टिक कोलिजन। आप नहीं, इंटरचेंज तो हो जाएगी, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। सिर्फ आपको ये करना है कि ए की वेलोसिटी निकालनी है जब वो बी को हिट करेगा।
So सबसे पहले ये निकालो कि a जब 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो b को मिल जाएगी। फिर b की इनिशियल वेलोसिटी पता है, b की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें दिया 2/15, वहां से सेपरेशन आ जाएगी बिकॉज a तो रुक जाएगा b के साथ कोलाइड करके, a रुक जाएगा b चल पड़ेगा, तो b जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा वो उनकी सेपरेशन हो जाएगी। सो फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच a स्ट्राइक्स b। सबसे पहले वो वेलोसिटी निकालो, फिर वो b की इनिशियल हो जाएगी, b की फाइनल 0, दोनों के लिए म्यू दिया है। सो collision का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि when the two bodies collide at that instant their velocities gets interchanged if the masses are same and collision is elastic। सर हम इसमें सेंटर ऑफ मास कंजर्व, सॉरी सर, मतलब मोमेंटम कंजर्व नहीं, कर सकते फ्रिक्शन हैं। लग रही है इसमें, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मत लगाओ, ये सिंपल, बिकॉज वैसे ही सिंपल है न्यूमेरिकल, सेंटर ऑफ मास लगाए बिना ही, क्योंकि एक तो दोनों की मोशन कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड होती तो मैं रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट लगा लेता। दोनों की इंडिपेंडेंट मोशन है, ए अपना अलग चल रहा है, आके बी से टकरा रहा है, जब तक वो बी से कोलाइड नहीं किया बी उसकी मोशन को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, फिर उसके बाद ए रुक गया और बी चल पड़ा, सर तो मैं नॉर्मल पूछ करो रहा था कि काइनेमेटिक्स से। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, मतलब क्योंकि सर फ्रिक्शन लग रहा मोमेंटम है कंजर्व नहीं है बिकॉज फोर्स एक्ट कर रही है, सर, फ्रिक्शन एक्ट लेकिन कर रही है ना। क्योंकि हमने जब वनडे में उसको डिराइव किया था तो उसमें सर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की यूज करी थी इक्वेशन। नहीं, 1D में ड्राइव किया था वो हमने लिया था कि कोलिजन हुई तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, यस एट सर। इंस्टेंट ऑफ कोलिजन अगर ए और बी कोलाइड करते हो उनका मास सेम है तो उस टाइम पे क्या पता बी को फ्रिक्शन है कि नहीं है, ठीक है सर। वेलोसिटी तो इंटरचेंज हो ही जाएगी। तो करो इसको सॉल्वेंट, बताओ क्या आता है आंसर। सेफ फॉर ए। हाँ, 56/8। सो मेरे पास वी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आफ्टर कोलिजन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वी बी। एट नहीं आ रहा आंसर। सर वही आ रहा है, थैंक यू ऑलमोस्ट। सॉरी 8 नहीं, 45, बस 40/8 आ रहा है ना।
देखो क्लियर है सबको तो. So it's 5 meter. Next. Ball of mass 1 kg is projected horizontally as shown in figure. Assume that collision between ball and ground is totally inelastic. The kinetic energy of ball in joules just after collision is found to be 10 alpha. Find alpha. हमें दिया collision is perfectly inelastic. So coefficient of restitution will be, if collision is perfectly inelastic, 0 होता था उसमें. coefficient of restitution will be 0. सर अल्फा 5 है. Alpha 5 है. कैसे करेंगे? सर मतलब उसमें सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी, मतलब उसकी. बिकॉज उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं करी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. Yes. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m into 10 square. हाफ एम बी स्क्वायर सो 50. सो यू कैन राइट द कंसेप्ट. बिल्कुल ठीक है. When the ball collides with earth, when the ball collides with earth, when the ball collides with earth, the vertical velocity of ball reduces to 0. The vertical velocity of ball reduces to 0, but horizontal velocity remains unchanged. हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं करेगी क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड as no force acts in horizontal direction. As no force acts in horizontal direction. As no force acts in horizontal direction. Therefore, final kinetic energy is 50 joules or alpha is 5. Final kinetic energy is 50 joules or alpha is 5. So next time करते हैं इसके आगे एंड इसके असाइनमेंट सेंड कर दूंगा मैं कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास की. कोलिजन्स के बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही है जो हम लॉज ऑफ मोशन में भी यूज करते हैं. सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे जो खास करके इलास्टिक कोलिजन एंड 1D का है. जो हमने लिया था कि इक्वल मासेस हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, या अगर एक का मास बहुत दूसरे से बहुत ज्यादा है तो हैवी की वेलोसिटी अनचेंज रहती है, दूसरे की 2u1 माइनस u2 हो जाती है. तो उस तरह की बेसिक चीजें जो बोर्ड वाली हैं वो याद रखनी पड़ेगी. अदरवाइज सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के मिक्स्ड क्वेश्चन हो जाएंगे. और स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम एक बार दोबारा देख लेना अपने नोट्स में से. सर हाँ जी सर आज वाली पीडीएफ भेज दोगे प्लीज? ठीक है, भेज दूंगा.